ملتان میں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے باہر پبلک واش روم بنانے کے لیے کھودی گئی بنیادیں اب تک نہ بھر سکیں۔ اسکول کے مین گیٹ کے بالکل ساتھ بنیادیں کھودی گئیں۔ روہی کی آواز اٹھانے پر انتظامیہ نے پبلک واش روم کا منصوبہ روک دیا تھا۔ ملتان گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے باہر پبلک واش روم کا معاملہ ہے، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے الشبہ آصف سے۔ الشبہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری گرلز کمپریہنسو اسکول کے باہر موجود ہوں، اور ادھر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ روہی کی آواز اٹھانے پہ جو واش روم بنانے کا منصوبہ ہے وہ تو روک دیا گیا، مگر ابھی بھی جو ہے بنیادیں جو ہیں بھری نہیں گئی ہیں، اور بالکل میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے اسکول کا ادھر گیٹ ہے، اور ادھر سے جو ہے اسٹاف ممبرز اور بچیاں جو ہے اندر جاتی ہیں۔ اب جو صبح والدین بچوں کو چھوڑنے آئے ہوئے تھے ان کا بھی یہی شکوہ تھا کہ اگر یہ بنیادیں نہیں بھری جائیں گی تو مسائل کا سامنا مزید ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے کام تو رکوا دیا گیا، دوسرا اسکول انتظامیہ کی جانب سے بھی یہ اسٹے کے لیٹر لکھا گیا تھا باقاعدہ کہ اس سے مسائل ہیں، مگر اسکول انتظامیہ کی جانب سے ابھی جو ہے بات کرنے سے بالکل منع کر دیا گیا ہے۔ ہم نے اسکول انتظامیہ سے بات بھی کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے نہ خود بات کی ہے، نہ ہی طالبات جو ہیں ادھر کی بات کر رہی ہیں۔ ادھر کے جو آس پاس علاقے، کیونکہ ابھی صبح کا ٹائم ہے تو پوری مارکیٹ بند ہے، تو کل جب بات کی گئی تھی شہریوں سے، یہاں کے علاقہ مکینوں سے، دکانداروں سے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس پبلک واش روم سے نہ صرف اسکول کی بچیاں یا اساتذہ جو ہیں پریشان ہوگی، بلکہ میرے سامنے اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے بالکل سامنے رائٹ سائڈ پہ، تو ادھر جو ہے باقاعدہ ایک بازار ہے، تو کوئی سوٹیبل جگہ نہیں تھی واش روم بنانے کی، مگر انتظامیہ کی جانب سے تاحال یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس کا مشورہ تھا۔ بہرحال انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پہ جو ہے یہ واش روم کا منصوبہ روک دیا گیا تھا جیسے ہی روہی نے خبر نشر کی تھی، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جب ہم لوگوں نے اتوار کو اس ایشو کو آ کر دیکھا تو اس وقت مزدور کام کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پرسوں کے منصوبہ روک دیا گیا، لیٹرز بھی جاری کر دیے گئے، مگر ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، مگر آج صبح سے جو ہے کام بالکل بند ہے۔ ابھی بھی یہ جو ہے تقریباً جتنا گہرا ہے، میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو اگر کوئی بچی یہاں پہ اسکول آتی ہے، خاص طور پہ کیونکہ یہاں پر ہیں، اگر میں اسکول کی بچیوں کی تعداد آپ کو بتا سکوں تو 2500 بچیاں جو ہیں ادھر زیر تعلیم ہے، کیونکہ یہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے۔ ایک بڑی تعداد میں ادھر جو ہیں طالبات ملتان کے مختلف پڑھنے آتی ہیں، اور اس کے ساتھ اسکول کی چھٹی ہوتی ہے یا اسکول کی اوپننگ ہوتی ہے یہ اسکول کا بیک گیٹ، مگر اس روڈ پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے، تو کچھ بچیاں جو ہیں یہاں سے بھی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر واش روم بنے گا تو اسکول کے ساتھ ساتھ جو سامنے دکانیں ہیں، دکاندار ہیں، وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہوں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پبلک واش روم بنانے کی یہ جگہ نہیں تھی، بالکل ہی یہ مین روڈ ہے، اگر کسی سائٹ کی جگہ پہ بنایا جاتا تو سمجھ آتا، کیونکہ جب پبلک واش روم بنے گا آبویسلی جو ہے اسمیل وغیرہ کے ایشوز ہوں گے، اور اس کے ساتھ اگر پبلک یہ یوز کرے گی، ساتھ ہی بچیوں کا اسکول ہے، چھوٹی بچیاں 12 سال سے لے کے 18 سال تک کی بچیاں جو ہیں ادھر زیر تعلیم ہے، ہائر سیکنڈری یہ اسکول ہے، تو یہ جو چیز ہے تھوڑی سی خطرناک ہوگی۔ جو کہ بچیوں کے والدین ہیں ان کا بھی یہی شکوہ تھا کہ اسکول کے باہر واش روم کا منصوبہ سمجھ سے باہر ہے، اور جب انتظامیہ نے روہی کی خبر پہ ایکشن لیتے ہوئے یہ منصوبہ بالکل روک دیا، اس کے باوجود بھی اتوار کے روز ادھر کام کیا جا رہا تھا۔ اب یہاں پہ کوئی مزدور نہیں ہے، کچھ کام نہیں ہو رہا، مگر بنیادیں جو ہیں ابھی بھی بھری نہیں گئی ہیں۔ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو یہ بالکل اسکول کے ساتھ دیوار ہے، یہ اسکول کا گیٹ ہے، بالکل میرے پیچھے دیکھیں تو یہ اسکول کا گیٹ ہے، یہ اسکول کی دیوار ہے، اور یہ بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے طالبات ہیں، یہاں کے دکاندار ہیں، ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ بالکل سامنے بینک بھی ہے، اور بینک کے ساتھ ہی ہے ایک بچوں کی ٹوائز شاپ ہے۔ ابھی یہ مارکیٹ جو ہے فی الحال پوری بند ہے، اگر میرے کیمرہ مین آپ کو سامنے دکھا سکیں، یہ پوری مارکیٹ جو ہے اس وقت بند ہے، پر مارکیٹ کے جو
ओनर हैं, दुकानदार हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो वॉशरूम बनाया जा रहा है, ना सिर्फ वो लड़कियों के स्कूल के बाहर बनाया जा रहा है उनके लिए ख़तरनाक है, बल्कि जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए भी ये मंसूबा जो है किसी अजियत से कम नहीं होगा। और कल जो है काम जिस तरह जारी रहा इंतज़ामिया के काम रोकने के बावजूद, तो हमने देखा है अभी आगे तो आज तो बुनियादें भरने का काम शुरू नहीं किया गया। अब ये देखना होगा कि आया इसका आज के थोड़ी देर बाद भी मजदूर यहाँ पे आके काम शुरू करते हैं या फिर ये बुनियादें भरी जाती हैं। मगर जो सुबह हमने देखा कि बच्चों को छोड़ने के लिए वालिदैन आए थे, उन्होंने काफ़ी शिकवा किया कि अभी तक जो है ये बुनियादें भर देनी चाहिए थी। ये मंसूबा जो है जब रोकने के अहकामात दे दिए गए तो 3 दिन तकरीबन तीसरा दिन है, तो ये काम अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो सका है। और यहाँ पे जो है जो 2500 बच्चियाँ पढ़ती हैं मुल्तान के मुख्तलिफ कोनों से आती हैं इधर, तो एक उनकी एक सेफ्टी का इशू भी है। और फीमेल असातिज़ा ही स्कूल में पढ़ाती हैं, तो असातिज़ा और तालबात की जहाँ सेफ्टी का इशू है, वहीं पे जो यहाँ पे मेन बाज़ार है, बिल्कुल मेन बाज़ार है, और उसके साथ ही ये वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो भी शिकवा करती हुई नज़र आती है कि ये वॉशरूम बनाने के लिए जो है बेहतरीन जगह का इंतखाब नहीं किया गया और इतनी जल्दी जल्दी ये काम शुरू कर दिया गया 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जबकि स्कूल की जानिब से जो है लेटर भी लिखा गया था जैसे ही काम शुरू हो रहा था कि जो है बच्चियां ज़ेरे तालीम हैं उनको जो है मसाइल का सामना हो सकता है। और बिल्कुल ही स्कूल के गेट के बिल्कुल ही साथ ही खुदाई शुरू हुई थी और काम शुरू हुआ था, मगर अब तक जो है ताहाल बुनियादें भरी नहीं जा सकी हैं। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकें, ना ही कोई मजदूर है, ना ही इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक ये ऑर्डर्स दिए गए। ये तो कहा गया था कि काम जो है फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा, मंसूबा फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा, मगर बुनियादें भरने का काम ये फिनिश करने का जो ऑर्डर है ये अभी तक नहीं दिया गया, क्योंकि कल भी यहाँ पे इतवार के रोज भी काम जारी था। जी बहुत शुक्रिया अलिशा आसिफ हमारे साथ ही तफसीलन अपडेट कर रही थी। आपको बताएं मुल्तान में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर पब्लिक वॉशरूम बनाने के लिए खोदी गई बुनियादों का मामला है जो अब तक भरी ना जा सकी। मुबारकपुर के इलाके अब्दुल्लापुर में एक बार फिर सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। नवाही इलाके अब्दुल्लापुर में दोबारा सैलाबी पानी दाखिल, गंदम की काश्त ताखीर का शिकार है। किसान शदीद परेशान, मुतासरीन के पास सर्दियों के लिए छत का भी कोई इंतजाम नहीं। अब्दुल्लापुर में घरों के इर्द गिर्द पानी जमा है। जिंदगी मफलूज, इलाका मकीनों की आला हुकाम से फौरी इमदाद की अपील है। आपको अपडेट करें, मुबारकपुर के इलाके अब्दुल्लापुर में एक बार फिर सैलाबी पानी दाखिल, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा है। आपको बताएं सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा, गंदम की काश्त भी ताखीर का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दिलशाद जोया से। बिल्कुल जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मौजा अब्दुल्लापुर में, जहाँ से अगर हम बात करें दरिया सतलुज की तो यहाँ से मौजा अब्दुल्लापुर जहाँ पे ये सैलाबी पानी एक बार फिर जो है वो पहुंच चुका है, जहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का फासला है। दरिया सतलुज का जो मेन पेटा है वहां से यहाँ तक तो ये बड़ी तेजी के साथ बहता हुआ एक बार फिर जो है मौजा अब्दुल्लापुर में दाखिल हो चुका है। लोगों के जो फसलें थी वो पहले भी तबाह हो चुकी थी, एक बार फिर पानी पहुंचने से लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मेरे अकब में अगर कैमरा मैन दिखा सके तो पीछे नजर भी आ रहा होगा, ये वो पानी है जो सैलाबी पानी दूसरी मरतबा जो भारत की जानिब से छोड़ा गया था, वो मौजा अब्दुल्लापुर के मकाम पर लोगों की फसलों में एक बार फिर जो है वो दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से जो आइंदा आने वाली फसल गंदम की उगाई है वो भी ताखीर का शिकार हो रही है। तो इसके साथ साथ जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि पहले भी हम मुश्किलात का शिकार थे, क्योंकि लोग जो है वो अपने घरों में दाखिल होने के लिए कुछ जो इंतजाम कर रहे थे वापसी को लौटने के लिए। तो एक बार फिर पानी की आने की वजह से जो है वो ये जो मुतासरीन है, सैलाब मुतासरीन जो पहले से ही उनके घर जो तबाह हो चुके हैं, तो वो एक बार फिर परेशानी का शिकार हो गया है, क्योंकि आइंदा आने वाली जो सर्दियां हैं उसमें उनको घर भी बनाना है, लोगों ने अपने फसल गंदम भी उगानी है। तो इस हवाले से जब दोबारा पानी आया तो वो उनको ताखीर का शिकार है, जो सर्दियां हैं वो भी करीब है, तो जिसकी वजह से उनका कहना है कि जल्द अज जल्द जो है वो इंतजामिया इस बात पर नोटिस ले, उनका कोई खास इंतजाम किए जाएं ताकि वो अपने बच्चों के लिए
दो वक्त का खाना और जो छत है वो मुहैया कर सके। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पानी है बड़ी तेजी के साथ अभी भी बहता हुआ नजर आ रहा है। मौजा अब्दुल्लापुर के मुख्तलिफ इलाकों में ये अब पहुंच चुका है। यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूरी के फासले पर जो दरिया सतलुज का मेन पेटा है वो वहां पर मौजूद है। मगर यहाँ पे अगर हम बात करें जिमीदारा बांध की, तो वो जिमीदारा बांध जो थे वो सैलाबी रेले में पहले ही जो सैलाबी रेला आया था उसमें वो खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से आगे रास्ता बना हुआ था। पानी जो है एक बार फिर आने की वजह से जो है वो दोबारा यहाँ तक पहुंच चुका है। जी बहुत शुक्रिया दिलशाद जोगी अपडेट करने के लिए। नौशहरा जदीद की बस्ती बंदवाली के मुकाम पर सतलुज के किनारे पानी में फिर इजाफा है। किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। काश्तकारों का कहना है वो गंदम की काश्त की तैयारी कर रहे थे, मगर पानी के बढ़ने से एक बार फिर उनकी जमीनें जेरे आब आ गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मलिक हबीब लॉन्ग। मलिक हबीब बताएगा। मैं इस टाइम बस्ती बांदवाली पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरे अकब में मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये पानी की जो सतह है एक बार फिर जो है बुलंद हो रही है, लेकिन खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो किसान हैं उनके लिए तो दुश्वारी का सामना है। किसान से बात करने की कोशिश करेंगे। जी भाई क्या अक्सर पहले सीसा को दरिया पहले भी तबाह कर चुके, सार शय बुड़ गई, सारे कपा हर शय खत्म है। हुण पानी लह गया, असा उम्मीद करें प्यासे भी कणक इंज वो जलती वैसू। हुण वल पानी आवन नाल साकू एक कणक भी वहां दा कोई उम्मीद नहीं नजर दी पई। वल तबाही शुरू है। इत्था ना कोई आए साडे कोल सर्वे आला, ना कोई प्राइवेट ते ना कोई हुकूमत दा बंदा, ना कोई इत्था आए। असा हुण अपील करें से मेहरबानी करें आवें देखें साडे नुकसान ते साडा जरा इजाला थी सके सर नाल करें कुछ। जी जैसा कि आपने सुना भी हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई तकरीबन 8 से 10 या 15 दिन के अंदर अंदर हमने ये गंदम काश्त कर लेनी थी, लेकिन इसके बाद जो है दोबारा यहाँ पर पानी आ पहुंचा है। तो लिहाजा किसान की तरफ से यही बार बार अपील की जा रही है भाई जब से ये फ्लड शुरू हुआ है तो इस टाइम तक हमारे पास सर्वे टीम या हुकूमती नुमाइंदा कोई ऐसा नहीं आया जो आके हमारी फरियाद सुने। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब को इस बात का नोटिस लेकर फिलफौर जो है इन किसानों का अजाला कराया जाए। जी शुक्रिया मलिक हबीब। आपको अपडेट करें रोही बना सैलाब मुतासरा खातून की आवाज़। थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद टिब्बी झिलन में खातून पर तशद्दुद का मामला रोही पर खबर नशर होते ही पुलिस हरकत में आ गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुतासरा बीबी आसिमा का आवाज़ उठाने पर रोही से इजहार तशक्कुर। थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद में टिब्बी झिलन में खातून पर तशद्दुद का वाकया पेश आया। रोही पर खबर नशर होते ही पुलिस हरकत में आ गई। थाना तरंडा मोहम्मद पनाह मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया। मुतासरा बीबी का आवाज उठाने पर रोही से इजहार तशक्कुर। मुलजिम इरफान, इमरान, नियाज और दीगर ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। FIR का ये मतन था। मुलजिमान ने खातून पर थप्पड़ों और मुक्कों से तशद्दुद किया। FIR में यह बताया गया। कुछ बात करें मौसम के हवाले से तो आपको बताएं मुल्तान शहर में मौसम करवट लेने लगा है। दिन के औकात में मौसम गर्म, जबकि रात के दर्जा हरारत में नुमायां हद तक कमी होने लगी है। आज दिन भर मतला साफ और मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हसन मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। हसन बताइएगा आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? आज जी शहर ओलिया मुल्तान और मुल्तान शहर हसन से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं मुल्तान शहर में मौसम करवट लेने लगा है। दिन के औकात में मौसम गर्म, जबकि रात के दर्जा हरारत में नुमायां हद तक कमी होने लगी। आज दिन भर मतला साफ और मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं। मुल्तान शहर में और गिरदोनवा का मतला साफ है। हसन से राब्ता बहाल हुआ है। हसन बताइएगा। आज जी शहर ओलिया मुल्तान और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतला सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज भी अपनी आबोताब से चमक रहा है। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल वेदर कंडीशंस के हवाले से बात की जाए तो वेदर कंडीशंस कुछ इस तरीके की हैं कि कुछ हद तक मौसम करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सुबह के औकात में
گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی تھی گزشتہ کئی دنوں سے، وہ اب کچھ حد تک تھمتی ہوئی اور کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بلکہ صبح کے اوقات میں بھی ہلکی سی خنکی موسم میں رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور موسم اس طریقے سے ویدر کنڈیشنز جو ہیں وہ دستک دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس طریقے سے سردیاں آنے والی ہوں اور صبح سویرے ہلکی ہلکی دھوپ ہوتی ہے، ہلکی ہلکی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، سیم اسی طریقے سے ویدر کنڈیشنز رہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے تک تو ملتان شہر کی جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ اسی طریقے سے گرم اور خشک رہتے ہوئی رہیں گی، لیکن آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 33 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب بھی کچھ حد تک کم ہے، جو کہ 60% تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 174 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا، جو کہ بدترین حد تک آلودہ ہے، اور پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج 7ویں نمبر پر سٹینڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ موسم چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو رات کے اوقات میں درجہ حرارت میں نمایاں حد تک کمی دیکھنے میں آتی ہے، جبکہ اگر دن بھر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو دن بھر اس طریقے سے موسم رہتا ہے کہ سورج بھی اپنی آب و تاب سے چمکتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، لیکن اوور آل ویدر کنڈیشنز چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ جہاں رات کے اوقات میں اور علل صبح کے اوقات میں جہاں موسم اور درجہ حرارت کچھ حد تک کم رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہیں دن میں گرمی کی لہر برقرار رہتی ہے، لیکن ویسے اوور آل موسم کچھ حد تک چینج ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے اور درجہ حرارت کم رہتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع بالکل صاف رہے گا، سورج اپنی آب و تاب سے چمکتا رہے گا اور دن کے اوقات میں بہت سورج شکریہ اور حسن گرمی کی تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں ملتان کا موسم، ملتان میں موسم کروٹ لینے لگا، دن کے اوقات میں موسم گرم جبکہ رات کے درجہ حرارت میں نمایاں حد تک کمی محسوس ہونے لگی۔ ملتان شہر اور گرد و نواح کا مطلع صاف اور خشک ہے، رات کے اوقات کار میں درجہ حرارت میں کمی ہے، زیادہ سے زیادہ پارہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے تک کے امکانات ہیں۔ آج سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا، ہوا میں نمی کا تناسب 60% ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کریں 174 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا۔ اب بات کریں گے بہاولپور کے موسم کے حوالے سے۔ بہاولپور اور گرد و نواح کا موسم بھی بدلنے لگا، صبح سویرے ہلکی خنکی محسوس ہونے لگی، صبح کا آغاز تیز اور چمکدار دھوپ کے ساتھ ہوا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے طاہر جودیانہ نے جوائن کیا ہے۔ طاہر بتائے گا۔ نوابوں کے شہر بہاولپور کے موسم کی بات کرتے چلے ہیں تو اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بہاولپور کا موسم جو ہے وہ تبدیلی کی جانب گامزن ہے۔ اگر ہم راتوں کے اوور آل ٹیمپریچر کی بات کرتے چلیں تو 5 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ مزید کمی دیکھنے میں آئے گی، اور اب صبح اور شام کے اوقات میں ہلکی پھلکی خنکی جو ہے وہ پہلے سے ہی محسوس کی جا رہی ہے، اور رات کے اوقات میں باقاعدہ طور پر اب کوئی نہ کوئی شال یا کوئی چادر لے کر ہی سونا پڑتا ہے، اور پنکھے عموماً جو ہیں وہ بہاولپور میں رات کے اوقات میں بند کرنا جو ہے شہریوں کی طرف سے وہ شروع کر دی گئے ہیں، لیکن دوپہر کے اوقات میں چونکہ تیز دھوپ ہوتی ہے، چمکدار دھوپ ہوتی ہے، جیسے آج بھی بہاولپور میں مطلع جو ہے وہ مکمل طور پر صاف ہے اور دن کا آغاز جو ہے وہ تیز اور چمکدار دھوپ کے ساتھ ہوا ہے، تو دوپہر کے اوقات میں خاص طور پر 12 بجے سے لے کر ساپیر 3 بجے تک ہلکی پھلکی جو گرمی ہے اس کی شدت برقرار رہے گی، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو بہاولپور میں آج بھی موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار رہنے کا امکان ہے۔ اگر ہم ٹیمپریچر کی بات کرتے چلیں تو معمول سے کم ہی چل رہا ہے، خاص طور پر دن کا جو میکسیمم ٹیمپریچر وہ پچھلے 3 سے 4 روز کے دوران مسلسل مستحکم چل رہا ہے، خاص طور پر اگر ہم 1 یا 2 روز کی آنے والے دنوں کی بات کرتے چلے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہی ٹیمپریچر جو یہ مستحکم رہے گا، لیکن 2 سے 3 روز کے بعد دن کا درجہ جو ہے اس میں 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ مزید کمی دیکھنے میں آئے گی، تو آنے والے 4 سے 5 روز کے بعد بہاولپور کا جو موسم ہے ایک دفعہ پھر اگڑائی لے گا اور دن کے اوقات میں بھی ہلکی پھلکی سردی جو ہے اس کی شدت بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس وقت بہاولپور میں درجہ جو ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، اور صبح کے اوقات میں جب ہم اٹھے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو خنکی کی شدت ایک ہفتہ قبل محسوس ہو رہی تھی وہ آج کچھ زیادہ
जबकि रात का टेम्परेचर जो है वो काफी हद तक गिरता नजर आ रहा है। आज के अगर हम टेम्परेचर पर नजर दौड़ाएं तो भावलपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता शब कम से कम टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है जी वो बहुत 60 शुक्रिया ताहिर अपडेट करने के लिए। बहावलपुर और गिरदोनवा का मौसम बदलने लगा, सुबह सवेरे हल्की हुनकी महसूस होने लगी। सुबह का आगाज तेज और चमकदार धूप के साथ हुआ। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया। रहीम यार खान में भी मौसम की रुत बदल गई। शहर और गिरदोनवा का मतला साफ, सुबह का आगाज हल्की ठंडी हवाओं से हुआ। सुबह सवेरे मतला साफ है, ठंडी हवा से सुबह का आगाज किया गया। आज मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। कम से कम दर्जा हरारत 20, ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री तक रिकॉर्ड होगा। आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान के मौसम के हवाले से और आने वाले दिनों के मौसम के हवाले से। रहीम यार खान में मौसम की रुत बदलने लगी है। शहर और गिरदोनवा का मतला साफ है, सुबह का आगाज हल्की ठंडी हवा से हुआ। रहीम यार खान में सुबह सवेरे मतला साफ है, ठंडी हवा से सुबह का आगाज। रहीम यार खान का आज मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। आमिर भट्टी से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। आमिर अपडेट कीजिएगा। रहीम यार खान शहर और गिरदोनवा में आज मतलब बिल्कुल साफ है। सुबह जो है वो नरम धूप से जो है वो सुबह का जो है सूरज का आगाज हो रहा है और उसके साथ साथ जो है वो हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है। इस वक्त जो मौजूदा दर्जा है तो 25 सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद जो सुबह का जो मौसम है वो सुहाना, दिलफरेब और मजेदार बना। और रहीम यार खान के शहरी जो कि एक गर्म इलाका है रहीम यार खान, और रहीम यार खान के शहरियों को इस तरह का मौसम जो है वो बहुत ही कम जो है वो देखने में मिलता है। तो रहीम यार खान में जो गर्मी के सताए हुए शहरी हैं उनके मुरझाए हुए चेहरों पे जो है वो खुशी सुबह सवेरे जो है वो अया है। और इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान शहर और गिरदोनवा में आज कम से कम दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन सुबह के वक्त मौसम तो खुशगवार है, लेकिन दोपहर के वक्त जो है वो सूरज का गुस्सा भी बढ़ जाएगा और शहर और गिरदोनवा में ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा आता है वो 34 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और माहिरीन सेहत के मुताबिक रहीम यार खान के शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर का दामन हाथ से ना जाने दें, क्योंकि अगर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो तो उसके साथ साथ जब इस तरह का मौसम में तब्दीली है कि मौसम जो है वो करवट बदल रहा है, गर्मी से सर्दी की तरफ आ रहा है, तो इसमें भी जो है वो रहीम यार खान के शहरियों की सेहत पे जो है वो मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो ऐसे में शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर का दामन जो है वो हाथ से ना जाने दें, ताकि शहरी जो है वो सेहत पर होने वाले मनफी असरात से महफूज रह सकें। गुजरते दिनों के साथ रहीम यार खान में दिन के दौरानिया में मुसलसल तब्दीली भी आ रही है और उसमें कमी भी आ रही है। रहीम यार खान में आज सूरज जो है वो 6:18 पर तुलु है, जबकि 6:02 पर आज सूरज जो है वो गरूब होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान शहर और गिरदोनवा में आइंदा 24 घंटों में ताहाल बारिशों के कोई इम्कानात नहीं, लेकिन आइंदा एक हफ्ते में इसी तरह से दर्जा हरारत और मौसम बरकरार रहने के इम्कानात हैं। जी बहुत शुक्रिया। आमिर भट्टी हमारे साथ थे, मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया। अब बात करेंगे डेरा गाजी खान के मौसम के हवाले से। डेरा गाजी खान में मतला जुज़वी तौर पर अबल आरूद है। सुबह के वक्त हल्की खुनकी महसूस की जाने लगी। दिन के वक्त मौसम गर्म रहेगा। आज कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री तक से रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया आइंदा 2 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। तफसीलात जानेंगे, आशान बुखारी ने ज्वाइन किया। आशान बताएगा। डेरा गाजी खान और गिरदोनवा का मौसम आज जुज़वी तौर पर अबरालूद है। सुबह सवेरे देखने में आया कि हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे हल्की खुनकी भी महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही आसमान में सूरज नमूदार हुआ है तो सूरज की जो तपिश है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। दिन के औकात के अंदर यही लग रहा है कि सूरज की तपिश जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे गर्मी की शिदत में थोड़ा बहुत जो है इजाफा हो सकता है। इस वक्त अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान हैं। इस वक्त हवा में नमी का तनासब 61% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि 8
किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं इस वक्त शहर के अंदर चल रही हैं। सुबह के अंदर तो हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन दोपहर के अंदर यही लग रहा है कि जो सूरज की तपिश है वो ज़्यादा हो जाएगी और गर्मी की शिदत में इजाफा हो सकता है, हल्का फुल्का इजाफा हो सकता है। लेकिन जो शाम के औकात हैं, ख़ासतौर पर रात के औकात, उनके अंदर जो है ठंडी हवाएं जो है चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मगरिब की तरफ से जो हवाएं हैं वो शहर के अंदर दाखिल हो जाती हैं रात के औकात के अंदर, जिससे जो है हल्की खुनकी महसूस होने लगती है और ठंडक भी महसूस होने लग जाती है, जिससे मौसम जो है काफ़ी हद तक खुशगवार हो जाता है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 2 रोज़ के दौरान जो है मौसम इसी तरह दिन के औकात के अंदर हल्का फुल्का गर्म रहेगा, जबकि रात के औकात के अंदर जो है ठंडा महसूस होगा। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 2 रोज़ के दौरान जो है बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। जी शुक्रिया शान बुखारी अपडेट करने के लिए। अब चलेंगे उच्च शरीफ के मौसम के हवाले से बात करें। उच्च शरीफ और मज़ाफ़ात का मौसम बड़ी तेज़ी से सर्द होने लगा। दिन में धूप, जबकि शाम होते ही ठंड पड़ने लगी है। कम से कम दर्जा हरारत 22, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के इम्कान है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम सर्द होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद हुसैन से। जी बिल्कुल, शरीर मज़ाफ़ात के मौसम के हवाले से बात करें तो शरीर मज़ाफ़ात बड़ी तेज़ी के साथ सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। जूं जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो है सुबह सवेरे जो है इंतहाई खुशगवार मौसम है, क्योंकि शाम होते ही और सुबह सादिक तक यहाँ पर ठंड पड़ने का सिलसिला जो है जारी रहता है। जबकि जैसे जैसे दिन निकलता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो हल्की हल्की सी धूप बहुत ही अच्छी महसूस होती है। जबकि दिन के औकात में जो है ना तो ये धूप थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। जबकि यहाँ पर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिनमें धूलकोट है, तंड बिशारत है, कच्ची लाल है, बेट बख्तियारिया है, हेड पन्नंद है, नबीपुर है, तहरवाली है, चनीगोट है, यहाँ पर भी मज़ाफ़ाती इलाकों में भी जो है ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं और हल्की हल्की ठंड जो है बहुत ही खुशगवार जो है मौसम को रखे हुए है। जबकि यहाँ पर दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जबकि जो है हवा में नमी का तनासब जो है 66% रिकॉर्ड किया गया है। जबकि जी शुक्रिया सज्जाद अपडेट करने के लिए। डीजी खान की तहसील कोट चट्टा में मौसम खुश्क रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मौसम की मज़ीद तफसीलात बताएंगे राना मोहम्मद सलीम। राना सलीम बताइएगा। जी बिल्कुल, अक्टूबर जैसा कि मौसमी तब्दीली का महीना है और इसी वजह से कभी गर्मी तो कभी सर्दी, ये सिलसिला जो है वो जारी है। तहसील कोट चट्टा के मौसम की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल यहाँ पर आज जो मौसम है वो खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के रिकॉर्ड करदा दर्जा हरारत के मुताबिक आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसकी वजह से दिन के औकात में सूरज जो है वो आंखें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर गर्मी की शिद्दत जो है वो भी महसूस की जा रही है। इसी तरह कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से रात के औकात में जो है यहाँ पर मामूली सर्दी जो है वो भी महसूस की जा रही है। हवा में नमी के तनासब की अगर मैं बात करूँ तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 63% तक रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं वो इस वक्त मौसमी तब्दीली और सर्दी की। जी शुक्रिया राना सलीम। अभी आपको बताएं रहीम यार खान में पुलिस मुकाबला हुआ है। थाना सदर रहीम यार खान पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 70 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्विस डाकू हल्लाक डाकू की शनाख्त अल्लाह दिता सयाल के नाम से हुई। पुलिस ने दौरान नाकाबंदी मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने की कोशिश की तो मुसल्लह डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डीपीओ इरफान अली समो की पुलिस टीम को क्विक रिस्पांस पर शाबाश। बक्कर लिया रोड पर अल हादी अस्पताल के करीब ट्रक उलट गया। हादसे में ड्राइवर हेल्पर मामूली जख्मी हो गए। हादसा टायर रोड की गोली निकलने के बाद पेश आया। ट्रक केला लोड करके सिंध से जौहराबाद जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस मौका पर पहुंच चुकी है। आपको बताएं भक्कर लिया रोड पर अल हादी अस्पताल के करीब ट्रक उलट गया है। हादसे में ड्राइवर हेल्पर मामूली जख्मी हो गए। हादसा टायर रोड की गोली निकलने के बाद पेश आया। ट्रक केला लोड करके सिंध से जौहराबाद जा रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी की माह सितंबर में कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी। 5245 फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन, 2450 को
इस्लाही नोटिस जारी किए गए। मिलावटी और जाली खुराक की तैयारी पर 6 मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। 5 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। खिलाफ वर्जियों पर 595 फूड बिजनेसेस मालिकान को भारी जुर्माने, 10 की बेहतरी तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। 5000 लीटर मिलावटी दूध, 360 लीटर रेसेंट ऑयल, 230 लीटर नाकिस मशरूबात तलब कर दिए गए। 330 किलो जायदुल मयाद और ममनुआ अशिया, 886 ममनुआ गुटका, 92 किलो मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया गया। खुराक की जांच के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट से 102 फूड सैंपल जमा किए गए। रिवर्स एंड लाइसेंसिंग विंग की जानिब से 87 फूड लाइसेंस जारी किए गए। मुजफ्फरगढ़ में मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कोशां है। फूड सेफ्टी टीम की नूरशार रोड कोटद्दू में मिल्क शॉप पर कार्रवाई। 500 लीटर गैर मेयारी दूध तलब कर दिया। शॉप मालिक को 20,000 रुपये जुर्माना किया गया। आपको अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ में मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कोशां है। मियां चन्नू में अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा आवाम के लिए परेशानी का बायस बन गया। 10 किलो आटे का बैग 910 रुपये बढ़कर 970 रुपये में फरोख्त होने लगा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम हैदर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियां चन्नू में। अगर बात की जाए अशिया खुदनोश की कीमतों की, तो अशिया खुदनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं किराना स्टोर पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए चीनी की, तो चीनी की कीमत है वो सरकारी रेट के मुताबिक 177 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। अगर बात की जाए आटे की, तो आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। 10 किलो वाला आटे का बैग है 910 रुपये से बढ़कर इस वक्त 970 रुपये में फरोख्त हो रहा है। जो 15 किलो वाला आटे का बैग है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। कीमत में 1500 रुपये से बढ़कर इस वक्त 1650 रुपये में फरोख्त हो रहा है। तो अगर बात की जाए घी की, तो घी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। जो दर्जा अव्वल का घी है वो इस वक्त 502 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। जो दर्जा दोम का घी है वो 440 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। तो अगर बात की जाए दाल मूंगी की, तो दाल मूंगी है वो 380 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। दाल मसूर है वो 255 रुपये, दाल चना है वो भी 255 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर चावलों की, तो चावल की कीमत में नुमाया कमी हुई है। जो अच्छे वाला चावल है वो 20 से 30 रुपये फी किलो कम हुआ है। अगर बात की जाए दूसरी आइटम की, चाय की पत्ती है, साबुन वगैरह है, उसकी कीमत में भी मामूली सा इजाफा हुआ है। तो जब हमारी बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से दुकानदारों से बात हुई, दुकानदारों का कहना है कि अगर एक आइटम का रेट कम होता है तो दूसरी आइटम का रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे साथ बहस करता है। दुकानदारी करना इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। तो जब हमारी शहरियों से बात हुई, शहरियों का कहना है शहरी ओलिया का मौसम तो बदलने लगा, मगर नाजायज मुनाफाखोरों की आदतें न बदली। सरकारी नरखों से ज़ायदुल मुनाफा पर फल और सब्जियां मुल्तान में फरोख्त होने लगी हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गैर फ़ाल होने से शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान ज़मीर से। सलमान बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर में भी हम देख रहे हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म हो चुके हैं, और उसी के साथ साथ जैसे हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, तो वहीं पर ही नाजायज़ मुनाफाखोरों की आदतें जो हैं वो नहीं बदल रही। और इसकी वजह यह है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो मार्केट्स में गैर फाल हैं, जिसकी वजह से शहरियों को महंगे दामों सब्जियाँ और फल जो है वो खरीदने पड़ रहे हैं। जबकि सरकारी नरखनामे में देखा जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। तो बात करेंगे हम सब्जी की, तो सब्जी के अंदर हरी मिर्च का सरकारी नर्ख जो है वो 100 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर 140 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त की जा रही है। इसी तरीके से टमाटर का सरकारी नर्ख 160 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर 210 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त हो रहा है। सरकारी नरखनामे में प्याज 78 है और मार्केट के अंदर इस वक्त 100 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त की जा रही है। सरकारी नरखनामे में शलजम 120, करेला 120 और भिंडी 140 रुपये फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में शलजम 170 और करेला 180, जबकि भिंडी जो है वो 160 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त की जा रही है। सरकारी रेट लिस्ट में साग जो है वो 74 है, लहसुन 275 और अदरक 540 रुपये किलो जो है वो मुकर्रर किया गया है। मगर मार्केट के अंदर साग जो है वो 110 है, लहसुन 400 है और अदरक जो है वो 600 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से फलों की बात करते चले तो फलों में सरकारी नर्ख के अंदर पपीते का जो रेट है वो 360 है, सेब 210 है और अनार जो है वो 260 रुपये किलो जो है वो मुकर्रर किया गया। मगर मार्केट के अंदर पपीता जो है वो 500 है और सेब 200 से लेकर 400 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त हो रहा है। अनार जो है वो 370 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर जो है
वो 600 रुपए, जापानी फल 230 रुपए, चीकू 450 रुपए किलो तक जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी के साथ साथ सिंघाड़े जो है उनका रेट, सरकारी रेट जो है 200 रुपए है, और जबकि केले जो है 100 रुपए से लेकर 160 रुपए किलो तक जो है दर्जन जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि सरकारी निकनामों पर जो है वो अमल दरामद करवाए ताकि लोग सस्ती म्यारी सब्जी और फल जो है वो खरीद सकें। जी बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। शुजाबाद में सब्जी के रेट की बात की जाए तो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत रवां हफ्ते रेट कुछ कम होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टमाटर दीगर शहरों की तरह शुजाबाद में भी महंगे हैं। मार्केट में सबसे सस्ती सब्जी पालक 30 रुपए, जबकि मटर सबसे महंगे 400 रुपए पर फरोख्त हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगे मुसफ्फर इंसारी। मुसफ्फर बताइएगा। जी बिल्कुल, शुजाबाद में अगर सब्जी के रेट के हवाले से बात की जाए तो शुजाबाद में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत किस हफ्ते सब्जी के रेट कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके अंदर ज्यादातर जो सब्जी है वो 100 और 150 की रेंज की मिल रही है। भाई क्या रेट चल रहे हैं? कद्दू और मटर के रेट बताएं। आलू 600 रुपए किलो है, मटर 400 रुपए किलो है, गोभी 100 रुपए किलो है। आलू 600 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो, मटर 400, गोभी 100 रुपए किलो, गाजर 100 रुपए किलो, बैंगन 60 रुपए, पालक 30 रुपए किलो, और टमाटर इस टाइम जो है वो टमाटर की फसलें तबाह हो जाए तो इस वजह से कम आ रहा है, टमाटर कम आ रहा है। और शिमला मिर्च क्या रेट दे रहे हैं और भिंडी क्या रेट दे रहे हैं? भिंडी है 160 रुपए किलो और शिमला लगाएंगे 250 रुपए किलो। अच्छा, शिमला मिर्च 250 रुपए किलो है, भिंडी जो वो 150 रुपए किलो है, और इसी तरह मटर भी मार्केट में नया नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बुरेवाला का सस्ता सब्जी बाजार शहरियों के लिए महंगा बाजार बन गया। टमाटर, प्याज और अदरक की कीमतों में रेट लिस्ट के बरक्स मनमाना इजाफा कर दिया गया। शहरी नाजायज मुनाफाखोरी से शदीद परेशान हैं। इस पर मजीद बात करेंगे काशिफ इकबाल से। काशिफ बताएगा। बिल्कुल, तहसील इंतजामिया की जानिब से शहरियों को सब्जियों की कीमतों में रिलीफ देने के लिए सस्ता रेडी बाजार तो कायम किया गया है, लेकिन यहाँ पर शहरियों को जो है सब्जियों की कीमतों में रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। अदरक, प्याज और टमाटर की कीमतें जो है वो दुगनी वसूल की जा रही हैं, जबकि रेट लिस्ट जो जारी की जाती है मार्केट कमेटी की जानिब से उसमें रेट बहुत कम है, और जो फ़रोख्त की जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा रेट में चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो सब्जी की खरीदारी के लिए आए थे, उनसे जानते हैं। जी, इधर हम सस्ता बाजार में आए हैं, पंजाब की तरफ गवर्नमेंट की तरफ लगाया गया है। यहाँ में जो रेट लिस्ट मुहैया की गई है, जो शाया की गई है मार्केट कमेटी की तरफ से, उसमें और मकामी दुकानदार के रेट में बड़ा तजाद पाया जा रहा है। जैसा कि आप टमाटर का रेट देख लें, रेट लिस्ट के मुताबिक 155 रुपये केजी है, पर 400 रुपये से ज़्यादा कीमत वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह अदरक का रेट चेक कर लें, हर चीज़ में इन्होंने आग लगाई हुई है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से यही मुतालबा है कि आप लोगों ने सस्ता रेडी बाजार कायम किया है, कम से कम जो मकामी इंतजामी की तरफ से, मार्केट कमेटी की तरफ से जो रेट लिस्ट शाया की जाएगी, हमें उसके मुताबिक जो है वो रेट मुहैया की जाए। बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि टमाटर, अदरक, प्याज और इसके अलावा दीगर जो मसाला जात हैं उनकी कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा वसूल की जा रही हैं, और मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी शुक्रिया काशिफ इकबाल। अभी वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मौसम सरमा शुरू होते ही गड़ा मोड़ में मछली बाजार सज गया है। मछली बाजार में मुख्तलिफ क़िस्म की मछली सजा दी गई। मछली की रेट ज्यादा होने से दुकानदार और खरीदार परेशान हैं। तफसीलात जानेंगे, साजिद चौधरी ने ज्वाइन किया। साजिद बताएगा। मौसम सरमा शुरू होते ही गड़ा मोड़ में मछली बाजार सज चुका है, जहां पर मुख्तलिफ इकसाम की जो मछली है वो सजा दी गई है। मेरे साथ इस वक्त कुछ दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। पिछले साल की निस्बत ऐद की मछली का रेट बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह तो गाहक मार्केट दे विच बहुत कम आ। हुकामे बाला के रिक्वेस्ट की जाती है कि साड़ी मछली के रेट को कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह तो गाहक भी आसानी नाल मछली खरीद सके ते साडा भी रोजगार चल सके। हर साल की तरह इस दफा भी मछली बहुत सारा
ਬਹੁਤ ਅਕਸਾਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। कौन कौन सी इकसाम आपके पास मौजूद है? ਰਹੂ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੰਗਾਰਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਗਰਾਸ ਪਈ ਹੈ, ਥੈਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਗੁਲਫਾਮ ਪਿਆ जी। जी जैसा कि आपने दुकानदार की बात से उनका कहना है कि साबका सालों की तरह इस साल भी गढ़ा मोड़ में मछली बाजार सज गया है, लेकिन अगर जी शुक्रिया साजिद। अभी आपको बताएं तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके सदर शाह में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस 700 साल पुराना कब्रिस्तान चार दीवारी से महरूम। चार दीवारी ना होने से कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल होने लगा। इलाका मकीनों ने कब्रिस्तान को अपने जानवरों की चरागाह बना लिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे गुलाम अली। जी बिल्कुल, तरंडा मोहम्मद पनाह का नवाही इलाका सदर शाह है। इस वक्त मैं सदर शाह के कदीमी कब्रिस्तान सदरुद्दीन में मौजूद हूँ, जो 700 साल पुराना ये कदीमी कब्रिस्तान है। इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस जो है इसकी चार दीवारी ना होने की वजह से कब्रिस्तान का तकद्दुस पमाल हो रहा है। इलाका मकीनों ने अब यहाँ से अपनी गुजरगाहें कायम कर ली हैं, जबकि जो यहाँ के चरवाहे हैं उन्होंने कब्रिस्तान को अपने जानवरों की चरागाह बना लिया है। इसके साथ साथ चार दीवारी कायम ना होने की वजह से दिन भर कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों का बसेरा रहता है, जो कब्रों को खोदते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कब्रों की बेहुरमती होती रहती है। मुतद्दिद बार निशानदही की गई, इंतजामिया के नोटिस में बात दी गई, मगर ताहाल जो है इंतजामिया इस कदीमी कब्रिस्तान की चार दीवारी कायम करवाने से कासिर है। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खाने के लिए जब इलाका मकीन आते हैं तो आगे कब्रों पर जो है कुत्तों को बैठा देखकर वो गमजदा वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर दिन भर आवारा कुत्तों का और जंगली जानों का बसेरा रहता है, जिसकी वजह से जी शुक्रिया गुलाम अली। अभी आपको खबर दें, लोधरा शहर में सीवरेज की बदहाली वार्ड्स के मकीनों के लिए मुसलसल अजाब की सूरत इख्तियार करती जा रही है। तफसीलात जानेंगे राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, लोधरा शहर में सीवरेज के हालात बद से बदतरीन और फिर और बदतरीन होते जा रहे हैं। कोई निज़ाम ऐसा नहीं, कोई गली ऐसी नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जिसमें सीवरेज की शिकायत ना हो, और इंतजामिया जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही। म्यूनसिपल कमेटी के तो एहलकार शायद कोई ख्वाब खरगोश में है और या कोई नींद की बेहतरीन दवाई खाकर जो है वो आराम की सूरत में है। यहाँ के अहले मोहल्ला उनसे जानते हैं। ये मोहल्ला जीवन वाला में इस वक्त मौजूद है। सर क्या हालात है यहाँ के? जी, जीवन वाला चौक है ये जहाँ हम खड़े हैं, और ये गली पिछले एक महीने से इसी तरह बदबूदार पानी के साथ भरी हुई है। 10 दफ़ा हम गए हैं म्यूनसिपल कमेटी में, दरखास्तें दे ली हैं, कंप्लेंट पे नंबर पे कॉल करके हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, कोई नहीं आया। यहाँ आया, अगर एक दफ़ा कोई आया भी है, उन्होंने एक डंडा से लेके तस्वीरें बनाई हैं या सफाई का बहाना बना के कार्रवाई डाल के वापस चले गए। ये पानी नहीं चला, ये जो मेन होल है उसी तरह बंद पड़े हैं, उसका गो थ्रू का कोई रास्ता ही नहीं है पानी का। तो हमारी तो ये, हम बहुत परेशान हैं। तो हमारी ये आपसे, आपके थ्रू, आपकी मेहरबानी, आप हमारी आवाज़ बने हैं, हमारी आपके थ्रू एक ये रिक्वेस्ट है कि इसको फिलफौर इस मसले का हल किया जाए, और सिर्फ सफाई नहीं, इसका मेन होल जो मेन लाइन है उसका फिर सद्देबाब किया जाए। जी बिल्कुल, सद्देबाब किया जाए। और ये हालात वाकई ऐसे हैं। ये मसरूफ शाहरा है, यहाँ सबसे पहली इमारत इस गली की तहसील हेडक्वार्टर लोधरा है, फिर स्कूल्स हैं, फिर इमारतें। और शुक्रिया राना आसिफ। अपडेट करने के लिए भी आपको बताएं, मुल्तान की खसूसी अदालतों में अहम नौयत के केसेस की समाअत आज होगी। कौन कौन से अहम केसेस शामिल हैं, जानते हैं महर इमरान से। आज बिल्कुल बात करेंगे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और खसूसी अदालतों के आज के अहम केसेस के हवाले से। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में मुख्तलिफ अहम पिटीशंस पर समाअत होगी। बात करें तो डीजी खान से जो खातून की गुमशुदगी के खिलाफ दायर पिटीशन पर समाअत होगी, जो आरपीओ डीजी खान को अदालत आलिया ने तलब कर रखा है। इसके साथ ही बात करें तो दीगर केसेस के हवाले से हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में पसंद की शादी करने वाली खवातीन की हरासमेंट के केसेस पर समाअत होगी। इसी तरह 17A के मुलाजमीन उनके बच्चों को नौकरी ना देने के खिलाफ दायर पिटीशनों पर समाअत होगी। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की बात की जाए तो दीगर भी अहम नौयत के केसेस रीजनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालतों में कत्ल, इक़दाम कत्ल, रॉबरी, डकैती समेत अहम नौयत के केसेस ज़ेर समाअत हैं। खसूसी अदालतों में अगर बात की जाए तो इंसानी दहशतगर्दी अदालत में अगवा बरतमान के मुख्तलिफ केसेस हैं। इसी तरह बात की जाए तो एंटी करप्शन कोर्ट में नाक़िस तफ्तीश करने वाले जो